Hello, my fabulous viewers, and welcome to the session of tarot reading. Now, this is the current energy check for the sign of Pisces from 16th to 30th of October. Now, please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Also, remember that energies can always shift and change. This could be your energy or partner's energy, take it as it resonates. And please check your sun, moon, and rising if you know astrology. Now this is for the sign of Pisces. Okay, here I am going to tell you about your recent past, your current situation, your near future, challenge, focus, and your overall energy, and give you some advice. So let's see what's going on with the sign of Pisces. Let's see what's going on. So the cards have already started falling off. Let's see what's going on with the sign of Pisces, my love team. This is for the sign of Pisces. This is your current situation. This is your recent past. This is your near future. This is your challenge. This is your focus, and this is your overall energy. Okay. Now your current situation is Page of Swords in the reverse. So Pisces, you are not talking to someone, you are not communicating, you are not online available for someone, और you yourself have आपने दूरी बना रखी है सोशल मीडिया से, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी से भी. इन द रीसेंट पास्ट 8 ऑफ कप्स इन द रिवर्स. सो ऐसा लग रहा है रीसेंट पास्ट में कोई पर्सन की वापसी हुई थी, एंड ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है जो आप पहले देख चुके हो, फिर से आपकी लाइफ में आ गई. टेक इट एज इट रेजोनेट्स. इन द नियर फ्यूचर हायरोफेंट इन द रिवर्स. सो हायरोफेंट इन द रिवर्स का मतलब है कि नियर फ्यूचर में आपकी कोई कमिटमेंट, कोई रिलेशनशिप है जो कि टूटती दिख रही है. इन द नियर फ्यूचर में आपके चैलेंज में 8 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा. एंड आप एक मेंटल जेल में हैं, आप सोचे जा रहे हैं एंड ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड थिंग्स आर नॉट क्लियर टू यू. और आपके फोकस में सक्सेस, विक्ट्री, अटेंशन, आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, तारीफ हो आपकी, एंड यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट. और ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स. तो कहीं ना कहीं जो आपके ओवरऑल एनर्जी के आप काफ़ी पेन में हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही बुरी तरीके से एंड हो गई. इट वॉज़ अ वेरी बैड एंडिंग, और आपको लगा आपको किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है. ये जो आपके ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप आपकी बहुत पुरानी भी हो सकती है, 10 years ऑलमोस्ट, 9 years, 10 years. सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी. एंड वॉट यू कांट सी द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. सो थिंग्स आर मूविंग सुपर स्लो, एंड यू आर प्लानिंग, यू आर रेडी टू मूव, बट धीरे धीरे आप यू आर टेकिंग थिंग्स स्लो, आप लाइफ को धीरे धीरे ले रहे हैं. एंड वो कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल स्लोली. ओके, सो दिस इज what your cards are saying. Now let's clarify one by one. First, I want to clarify the Page of Swords in the reverse for Pisces. What is this Page of Swords in the reverse for Pisces, my love team? Your current situation, Page of Swords in the reverse. Okay, Pisces, Page of Swords in the reverse is clarified by the 3 of Swords. You have the Queen of Swords and you have the 8 of Wands. So Pisces, यहाँ पे there is lot of heartbreak, and आपने किसी से बातचीत करी है, there is communication coming. ये ऐसा लग रहा है कि आप बातचीत करेंगे, अगले 15 दिन में आपकी बातचीत होगी. और somebody will be very hurt, somebody will have a massive heartbreak, a breakup between you two people, और somebody wants to talk to you straight, या आप किसी से बात करना चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में. somebody wants to express themselves, बट बहुत डिसअपॉइंटमेंट है प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी. या तो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, यू कुड बी डीलिंग विद द एरीज, लियो, सैज. लेकिन कम्युनिकेशन आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है.
and somebody wants to talk straight, but there is lot of heartbreak. Bottom of the deck is Queen of Cups in the reverse. So there is no emotional, कोई भी इमोशनल जुड़ाव आपका नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में. Now let's see Eight of Cups in the reverse in the recent past. Eight of Cups in the reverse is clarified by the Nine of Cups in the reverse, the Nine of Pentacles in the reverse, and the Ace of Cups. Sorry, Eight of Cups. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन वापस आई या कोई पर्सन वापस आया जो कि आपके पास आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट था, एंड दे वांटेड टू ऑफर यू लव, दे वांटेड टू ऑफर यू फ्रेंडशिप. एस ऑफ कप्स, दे वांटेड टू ऑफर यू अफेक्शन इन द रिसेंट पास्ट. सो समबडी केम बैक इनटू योर लाइफ एंड दे वांटेड टू ऑफर यू, बिकॉज दे, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अंदर से अनहैप्पी है, नाखुश है, क्योंकि शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया और ये आपके ऊपर इमोशनली बहुत डिपेंडेंट है. और यू नो दे गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस और यू गिव देम लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एंड ये फैमिली मेम्बर की तरह है या ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है. दे हैव बीन असेसिंग बट देयर वाज अ टावर मोमेंट रीसेंट पास्ट और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया. नाउ ये मुझे रिलेशनशिप रीडिंग लग रही है. नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर. इन द नियर फ्यूचर यू हैव द हारोफांट इन द रिवर्स. So let's clarify the Hierophant in the reverse for Pisces. What is this Hierophant in the reverse for Pisces people? Yeah, it's absolutely clear. Bottom of the deck you have the World. तो एक आपके ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो रहा है. A new chapter is beginning. You are entering into a new portal. You have closed one chapter. You also have the World. Sorry, you also have the Wheel of Fortune. So definitely your luck is changing. Things are changing very fast. Now, in the near future, your Hierophant is cleared by the Empress in the reverse, the Three of Cups in the reverse, and the Page of Wands in the reverse. So somebody wants to have a reconciliation with you. कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे रिकन्सिलेशन चाहता है और यू नो दे वांट टू नर्चर दिस रिलेशनशिप. लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका ऑलरेडी उस पर्सन से ब्रेकअप हो चुका है और या फिर होने वाला है इन द नियर फ्यूचर. एवरीथिंग इज़ चेंजिंग फॉर यू. दिस ब्रेकअप हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड दिस चैप्टर इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड फॉर यू. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी इन द नियर फ्यूचर. Now let's see your challenge. Your challenge is the Eight of Swords. Eight of Swords का आपका challenge क्यों है? Why is the Eight of Swords your challenge? What's happening? What are you thinking? What is Pisces thinking? Okay. Eight of Swords is clarified by the World in the reverse, by the Wheel of Fortune in the reverse, and the Three of Pentacles in the reverse. So आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं. आपकी लाइफ में कोई ऐसी साइकिल है जो आपके नियर फ्यूचर में तो कंप्लीट होते दिख रही है, मगर इस समय देयर इज़ एन अनफिनिश्ड बिजनेस एंड आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं कि यू नो वाई थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट इन योर लाइफ द वे यू वांटेड देम, और इट वाज अ टोटल फेलियर, वेस्ट ऑफ टाइम. और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है सिचुएशन को लेकर के एंड यू आर ओवर थिंकिंग एंड यू कैन सी दिस एट ऑफ सॉर्ड्स. सो दिस वुमन, ये शी इज़ सराउंडेड बाय दी सॉर्ड्स एंड शी हैज़ गॉट अ ब्लाइंड फोल्ड. इसकी आंखें बंद, आंखें में पट्टी, आंखों में पट्टी है. और ये पर्सन जो है ये पर्सन चाहे तो अपने आप को इस जेल से निकाल सकता है. अपनी पट्टी खोल के उसको क्लियरली दिख सकता है व्हाट इज़ हैपनिंग. ये सॉर्ड्स से निकल के बाहर वो सोच सकते हैं, बट शी इज़ नॉट विलिंग. तो आप बार बार यही सोचे जा रहे हैं कि यू नो you wasted your time and it was a very bad period of your life and things like that, and your main challenge is that you should come out of this overthinking. You should stop this negative thinking. जो चीज़ गुजर चुकी है उसके बारे में बार बार सोच विचार ना करें, उसको क्लोज कर दें करेक्टली और मूव ऑन करें लाइफ में. दिस इज़ व्हाट योर चैलेंज इज. नाउ लेट्स सी योर फोकस इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स upright. What is the six of wands upright as your focus? Okay, Six of Wands is clarified by the King of Wands in the reverse, the Four of Swords and the Temperance in the reverse. So yeah, आप कहीं ना कहीं
आप विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं, आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल। आप अपने काम के लिए आप प्रशंसा चाहते हैं, आप फेम चाहते हैं, आप नेम चाहते हैं, इसलिए यू आर फोकस ऑन हीलिंग योर सेल्फ। आपका फोकस इस समय कम्प्लीटली हील करना है, क्योंकि कोई आपका रिलेशनशिप था डेफिनेटली जो ब्रेकअप हो गया आपका, और आप नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, विच इज़ नॉट हैपनिंग। सो दैट इज़ वाई यू आर फोकसिंग ऑन योर सक्सेस विक्ट्री। और आप लोगों से प्रशंसा चाहते हैं, आप यू वांट नेम फेमस होना चाहते हैं। तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवरी। अगर आप सिक हैं, बीमार हैं, तो आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद द 10 of swords as the overall energy. Your overall energy is the 10 of swords. Why the 10 of swords, please? Yeah. 10 of swords is clarified by the page of pentacles, by the justice and by the king of pentacles in the reverse. So आपकी overall energy है कि आप आपका कुछ breakup हो गया आपका. For some people it can be a divorce also, and somebody is single. आप isolation में रहना चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं. डेविल एनर्जी, दिस रिलेशनशिप वॉज वेरी वेरी टॉक्सिक, तो आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर आना चाहते हैं. you are manifesting spiritualism in your life. You are manifesting to be single, you are manifesting to remain in isolation. आप उस पर्सन से शायद कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं, और आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि देयर वाज अ वेरी बैड एंडिंग, it was very painful ending, and you people have separated, you people have divorced, so you want to recover from this situation. Now this is what I have for you, Pisces. Now let's see what advice Tarot has to give you. Please give me the advice for Pisces. Yeah, your advice is the Hermit in the reverse, 7 of Wands in the reverse, and the Judgment in the reverse. तो आपकी एडवाइस है कि आपको एक जजमेंट कॉल लेना चाहिए, आपको फाइनल कॉल लेना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि व्हाट यू वांट, एंड इसके लिए आपको बहुत सोच विचार की ज़रूरत है, एग्जैक्टली व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन. और आपको इस विक्टिम मोड से बाहर निकलना चाहिए, इस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकल के अपने लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे आपको कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू टू बी इन दिस एनर्जी, in this pain, in this trauma, or you want to have a new beginning. तो आपको ध्यान से अंदर जा करके अपने अंदर जाएं, सोल सर्चिंग करें, सोल सर्चिंग करके ये जानने की कोशिश करें कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें एंड टेक अ जजमेंट कॉल, और टेक अ फाइनल कॉल, फाइनल डिसीजन दैट व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, और उसको क्लोज करके अपने चैप्टर को और नई तरह से ज़िंदगी को शुरू करें. So this is what I have for you, Pisces, and I hope you got something from it. If you like the video, please hit the like button. Till then, see you next time. Bye bye.